हेलो एवरीवन। अभी जैसे कि आपको पता है अभी कॉलेज लिस्ट फिल करने का टाइम आने वाला है या फिर अभी 2-3 दिन में आप कॉलेज लिस्ट फिल करोगे। सो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन आता है कि वीआईटी में कोर ब्रांचेस इन 2025 वर्थ इट है क्या। सो टुडे वी हैव अमन फॉर दैट। अमन, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस दिस? Thank you, Pratham, for having me on the channel. Myself, Aman Mohan. I am from ENTC department, currently studying in second year at VIT college. So it's been a fun journey around. And yes. सो अभी आप सेकेंड ईयर में हो, राइट? सो फर्स्ट ईयर की आपकी जर्नी बताइए कॉलेज में कैसे है, या फिर फर्स्ट ईयर में क्या क्या एक्सप्लोर किया आपने कॉलेज में, पीएचडी की ब्रांच एंड रिगार्डिंग दैट। Okay. So, how do you want to go? Like, there are two parts to this. One is curricular and one is co-curricular, extracurriculars. So, in both sense, if I want to say VIT is the place where you get to enjoy as well as study. Both the things go hand in hand. And let's begin with curriculum because most of the folks over here are coming in that. So yes, initially getting settled into the college around was 15-20 days were a bit hectic because it's all new environment around. तो आपको भी थोड़ा कॉलेज के साथ में फैकल्टी के साथ में रेजोनेट होने में टाइम लगता है. So the initial first 15-20 days were all basics, like we had formulas of integration, derivatives, derivatives and stuff first few days. And later on when we began with actual curriculum, we began with the most basic thing. Like all the faculty at VIT, they have like immense support all around. And I have to say that core concept of is like why you are studying this. ये explain faculty ने मैंने किया before getting into the study, which is most important point. लोगों को पता भी नहीं होती हमने ये branch क्यों ली होती है. So yes, first year at VIT we started. We had 2 semesters. First sem and second sem we had teacher changes between the 2 semesters. Then as per the curriculum which is design. It is mostly, I would say, based on the current industry applications. तो उसके हिसाब से जो है डिजाइन किया है curriculum. जैसे कि अभी टेक्निकल वालों को जो हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो नहीं होते, सो ईएनटीसी वालों को मतलब क्या चेंजेस है उस सब्जेक्ट्स में, लाइक दे हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लाइक, या फिर उसके जगह पे कोई जो इंडस्ट्री लेवल सब्जेक्ट्स है? Right. So very nice question. Over here, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ तो there is nothing in detail. अगर तो केमिस्ट्री की बात करेगा तो केमिस्ट्री इज वेरी मिनिमल. जो आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, आयंस, ये सब जो बेसिक बात है, ये चीजें यू हैव टू गो थ्रू. मतलब जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जहाँ पे आई वुड से संगम होता है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिलेट टू ईच अदर. तो फिजिक्स में देयर इज दिस चैप्टर नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. Then you have alternating current, then you have all the chapters which are related to engineering basically, which also have chemistry involved in them. Those chapters were focused, and yes, we had most of the part of 11 chemistry जो यहाँ पे आने का बहुत easy लगता है. सो एज यू कैन सी टेक्निकल वालों को जो इंडस्ट्री रिलेवेंट सब्जेक्ट्स है वो वीआईटी में पढ़ाए जाते हैं, एंड कोर ब्रांचेस लाइक ईएनटीसी हो गई, सिविल, मैकेनिकल, इन लोगों को जो इंडस्ट्री रिलेवेंट सब्जेक्ट्स जो इंडस्ट्रीज में ईएनटीसी का यूज होता है वो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स है. सो अभी करंटली अपन जो है एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, लाइक वीआईटी नोन फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स एंड वहां से बहुत बहुत बड़े लोग वीआईटी से पास आउट हुए हैं. सो अमन में भी उन लोगों में से एक हो गए वीआईटी के में. सो अमन, कैन यू डिस्क्राइब ऑल योर अचीवमेंट्स एंड स्टार्टअप? Yes, definitely. So I'm currently working on a startup which is mainly focused towards the manufacturing, prototyping, designing, and development of drone technology here in India. So when I talk about drone technology, what comes in our mind is an alien device, but the whole engineering which is required to have a device into the air and function just like the way we want it to requires a ton of experience, I would say, and some hardware and technical or software expertise as well.
So we are working on developing these systems here in India, manufacturing all the core components of the phones, right from the frames, the electronics and software, hardware, all the stuff here in India. So that is what our startup is mainly based on. To have to be independent from China in this area. So, along with your academics and curriculum, how do you manage your startup studies and all? So this is a very great question. So we have a college timings in the morning, let's say. So 8 से लेके अगर 1-2 बजे तक हमारा कॉलेज होगा तो वो टाइम में पूरा फोकस कॉलेज में देना है. 1 घंटे का लेक्चर होता है मैक्सिमम. You have 3 lectures which are theoretical and 2 labs or 1 tutorial. ये जो सब्जेक्ट्स है ये जब तक ड्यूरिंग द क्लास ही तुमने सब देखा तो क्वेश्चन मिला उसी को वहां सॉल्व कर लो. इट्स बेस्ट. मतलब उसके बाद में घर जाकर वो करना ना पड़े. ये फोकस से अगर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करोगे तो इट विल बी वेरी इजियर टू हैंडल अदर थिंग्स. तो 2 बजे के बाद जो मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम बचता है आई गेट टू माय हाउस, आई टेक सम रेस्ट एंड देन आई वर्क ऑन माय स्टार्टअप जो बचा हुआ टाइम है. So as you can see, VIT में बस पढ़ाई पे भी फोकस नहीं होता, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों के लिए भी टाइम मिलता है, जैसे कि हमारा एकेडमिक्स के साथ साथ बाकी चीजें भी करते हैं. सो एज यू आर इफ यू आर सीकिंग फॉर चांसेस और कोई अगर आपको एकेडमिक्स के साथ साथ और भी कुछ चीजें करनी है, सो VIT इज द राइट प्लेस फॉर यू. सो नेक्स्ट थिंग हमारी ये है कि अभी फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट सेम हो गया, सेकंड सेम हो गया. सो सीजीपीए मेंटेन करने में आपको वहाँ पे दिक्कत आई या फिर सीजीपीए आपका अच्छे से मेंटेन हुआ या फिर जो फैकल्टीज है वो आपको सीजीपीए मेंटेन करने देते हैं, लाइक उनको उनका सपोर्ट रहता है मार्क्स देने में, या फिर उनका सपोर्ट कैसा है? So CGPA की बात करूँ तो honestly, if I were to say मेरा first sem में around 8.78 CGPA था. Even second semester around 8.75. So 0.03 से मेरा CGPA drop हुआ, but that does not really matter if I were to say honestly. जी ये हुआ CGPA का बात. Apart from this, you asked me about faculties being supported. Yes, so faculties around here are I have to say some of the faculties among our branch are really highly educated, well qualified. उन्होंने properly guide करते हैं. They make us go through the subject. कि what are the future scopes of this subject? Why you are studying it here in engineering and especially in ENDC? Because ऐसा नहीं है कि CS में जो subjects है वही subjects ENDC में हो या फिर vice versa. It can be different. तो वो सब्जेक्ट का रेलेवेंस वहाँ पे क्यों है, ये चीजें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. ओवरऑल फैकल्टी का सपोर्ट हैज बीन रियली गुड. द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज गेट टू द फैकल्टी, आस्क देम डाउट्स. अगर नहीं समझता है तो यू शुडंट स्टे क्वाइट इन द क्लास. So like we have to approach. You have to approach, you have to interact with the teachers. If you don't do that, then you will be among the ones who do not care. या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कुछ यार लेक्चर समझा नहीं, मजा नहीं आ रहा. तो इट इज फॉर दिस कि कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट. तो फैकल्टी के साथ में जो डिस्कशन या फिर इन क्लास क्वेश्चन होते हैं या फिर आंसर करना, बीइंग अटेंटिव इज अ पार्ट. बट apart from being attentive, being active in the class is very important, I would say. So like as you said, faculties are very supportive. So as you know कि electronics and telecommunication industries हो गई, instrumentation industry, mechanical या civil, ये industries में projects बहुत matter करते हैं. And VIT is known for their projects things, like वहाँ पे first year से भी projects start हो जाते हैं. So what projects you made in your first year, और कौन से ऐसे projects हमने बनाने चाहिए जो भी जिसमें potential है and जिसको हम patent के लिए डाल सके and वो industry में really हमें help करे for hiring and placement. So yes, also talking about patents, आपने बात किया. Patents के लिए भी faculty बहुत supportive रही है. During the duration of my first sem, मतलब VIT, I have to say, is the college which focuses on hands-on application. Hands-on application ये बहुत सारे colleges में आज भी missing है. What majority of the colleges, even in top institutes, we नाम नहीं लूँगा, but what happens is student comes to the college,
सिखाता है, चले जाते हैं, असाइनमेंट दे देता है, the student has to sit and solve those assignments without understanding कि उसके अंदर है क्या. So children end up using ChatGPT or some external help to complete the assignment or copy it. But in a place like VIT, I have to say that there is a focus on projects. I have to say projects हमें हर semester में हर subject को we have to make some projects depicting कि तुम्हारी understanding उस subject में कितनी है. So this was very important, and I have to highlight this point कि जो hands-on approach है VIT का पूरी curriculum का, that is there. We also have assignments, but ऐसा नहीं होता कि it's only assignments along with the hands-on. एंड असाइनमेंट भी होते हैं जो इंटर फॉर्मेट में ही करने पड़ते हैं. मोस्टली असाइनमेंट जो रहते हैं गूगल फॉर्मेट में या फिर डिजिटली आप असाइनमेंट सॉल्व करते हैं. Yes, this was there. I think CS के लिए होगा, but मैं जो ENTC में होता है, you have these K maps to solve. कुछ gates basically logic gates होता है. तो इसके लिए आपको पेपर पे सॉल्व करना पड़ता है. Yes, of course. इसके लिए simulations भी आ गए हैं. And we have had these faculties also explaining us as to how to go about understanding those simulations. So yes, this part has also been there. Projects, if you were to say, I have we have EDI or ACE. Say Applied Sciences and Electronics. So in the first time I had made a wireless communication device. Of course, in the EDC culture as communication itself, I designed something in the path of communications. So communication में we had developed a RF module which basically has multiple channels to control a robot up to a distance of around 100-150 meters. This was my first project. We got selected to the finals. We had yes, this thing. The projects which are selected to the finals get support from external founders who are working in this industry. So we had sessions in our auditorium as well for the projects which were highlighted. So that kind of support was also there. How to go about patenting your projects, EAP support to the hub. And in fact, we also have had for one of the projects. In the second sem, we had made a project which was a head tracking device, so which is mainly used in military defense sectors. Also, it is used in drones as well. तो हमने ये भी प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन किया था. इसका भी प्रोजेक्ट पेटेंट का काम है, वो चल भी रहा है. सो लाइक अभी आप देखते हो कि VIT में प्रोजेक्ट्स पे बहुत फोकस करते हैं जो कि इंडस्ट्री में हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर जिसका इंडस्ट्री में यूज होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बीइंग कॉन्फिडेंट इज द मेन की टू सर्वाइव इन कॉलेज. लाइक so for that we have various club cultures and all the things like we have fest and all. So how does club culture is in Konoha campus in VIT? like वहाँ पे कैसे क्लब्स है एंड आप कौन से क्लब में पार्टिसिपेट करते हो एंड करोगे? So as far as I know, in VIT we have a diverse club culture. We have around 40 to 45 clubs, but more than that clubs. Each club is masters in its own domains. We have a club which is focused towards aviation technology. We have a club which is focused towards robotics and automation. We have multiple clubs which are focused in software domains as well. So actually अगर जो तुम knowledge mainly gain करते हो क्लासरूम में करते ही हो, apart from that जो actually तुम्हें industry में knowledge लगने वाला है, you do it mostly from these clubs only. जैसे कि मैकेनिकल, अगर कोई मैकेनिकल वाला है उसको इंटरेस्ट है लाइक इन बाइक्स एंड ऑल कार्स थिंग, तो वी हैव एंड Yes. क्लब so they can get practical knowledge from that. We have these clubs also which wherein they develop their own vehicles and they take it for national level competitions जहाँ पे all over India से IITs, NITs वो लेवल पे हम लोग जाके पार्टिसिपेट करते हैं. वहाँ पे we do the competitions and there have been amazing results as well. तो वहाँ पे exposure and the connectivity with external people apart from college का तो है ही, but college के बाहर की जो है आपको उसका exposure मिलता है. So that is the best part of these clubs. So like as you know कि VIT में वास्ट क्लब कल्चर है
एंड एज वेल एज VIT के दो कैंपस एज यू नो, VIT विजयवाड़ी एंड VIT कोलवा। सो दोनों ही कैंपसेस में क्लब कल्चर अमेजिंग है एंड आपको दोनों ही कैंपसेस में अपॉर्चुनिटी सीख करने का चांस मिलेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड कि बहुत सारे लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि कुछ परसेंटाइल से उनको टेक्निकल ब्रांच नहीं मिलती, सो दे चूज ENTC और लोअर कोर ब्रांचेस एंड बट दे वांट टू मेक करियर इन टेक्निकल। सो दे थॉट कि लाइक कॉलेज में मैं अभी ENTC ले लेता हूँ एंड करिकुलम में साथ साथ में कोडिंग की प्रैक्टिस करूंगा या फिर कोडिंग स्किल डेवलप करूंगा एंड देन कोडिंग में जॉब लूंगा या फिर कोडिंग में प्लेसमेंट लूंगा। सो इज इट दैट इजी जो लोग सोचते हैं, या फिर आपको कॉलेज भी उसके लिए सपोर्ट करता है एंड आपको एक्सपोजर कैसे मिलता है उस चीज के? So coming to this point जहाँ पे there was this question कि लोग अप्लाई करना चाहते हैं टेक्निकल के लिए but due to some difference in percentile they are not able to get into those branches, and many of the people what they do is they go for core branches and decide to work on their coding skills. So yes, इसके लिए भी as we discussed we have clubs में there are clubs which are dedicated especially for coding. उनको C++ सीखना है, Java सीखना है, Python सीखना है. These clubs make you develop your own skills, but at the end it is completely up to you and your sole responsibility to work to develop that knowledge. Because what happens is it gets a bit difficult while managing both the complete core subjects along with coding. So it is recommended to spare some time out. थोड़ा दोस्तों के साथ में टाइम कम स्पेंड किया तो चलता है, बट यहाँ पे करना if you genuinely want to work on your coding skills despite not being in a coding domain, then you have to spare some extra time. I'm not saying कि आपको extra curricular या दोस्तों के साथ टाइम कम स्पेंड करना वो बहुत होता है, वो हर एक कॉलेज में होता है, and especially in VIT we do it to the top level. So yes, it is up to you कि तुमको हाथ पैर अच्छे से मारना आता होगा तो you will flow to this. ऐसी बात है जैसे कि आपने सुना ENTC पहले ही एक थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है एंड इफ आप ENTC के साथ साथ कोडिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो सो यू हैव टू हसल। कॉलेज आपको फुल सपोर्ट करता है बट आपको 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी ENTC में टेक प्लेसमेंट की टेक्निकल ब्रांच एंड रिगार्डलेस आपकी कोर ब्रांच ENTC हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन हो, कोई भी आपकी कोर ब्रांच हो पर आपको हसल करना पड़ेगा इन 4 साल। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, are the subjects really industry relevant, like they are preparing you for real world problems and what other opportunities you get? Since you have asked this question, I would like to have a high emphasis on this point as well. बहुत सारे colleges they are still following the syllabus जो 2015 का पैटर्न था, outdated. It is not even relevant now, neither it is required. But since VIT has gotten autonomous, उन्होंने उनका खुद का curriculum design किया है, develop किया है. They have modules based on branches to branches वो vary करता है module. हाँ, तो module to module, sorry, branch to branch the module varies and industry relevance अगर मैं कहूँ तो yes, there are a few parts जो होने ही चाहिए. It doesn't matter कि वो 2015 का हो या फिर 2025 का हो. Some things like resistors, diodes, transistors, capacitors. You cannot ignore learning about those parts. They form the core electronics. if I would say. core electronics है, उसके अलावा उनके जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर फोकस डेफिनेटली. बट कैसा होता है ना, ड्यू टू दिस पॉलिसी एज वेल, व्हाट हैपेंस इज पीपल जंप टू एडवांस. People think कि हम लोग और एडवांस करेंगे तो it will be better for us. But many of the times that is not the case. If you are not so good with your fundamentals, but still you decide to get into difficult or more complex stuff, then it gets a bit hectic. That is not recommended. Faculty है, faculty से पूछो क्या करना है, लिमिट में करना है, कितने एक्सटेंड तक करना है, and accordingly if you follow the whole path,
what as to what the curriculum is being designed. So I'm sure you'll definitely improve the industry standard. तो एज यू सी आप टेक्निकल ब्रांच में जाओ या फिर कोर ब्रांच में जाओ, दोनों ही ब्रांचेस के जो सिलेबस है वो इंडस्ट्री रिलेवेंट है, वो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं विच विल हेल्पफुल इन योर एकेडमिक्स. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the internship opportunities in BIT, like in third year or in fourth year, or as you know कि like आप सीनियर्स हो गए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो जैसे सीनियर्स आपको बता दो कि इंटर्नशिप के लिए ये प्रिपेयर करो, वो प्रिपेयर करो. So what are the actual requirements to get an internship in technical or as well as in BIT? What you are required to get an internship in these domains is a funny question, I would say, or a very interesting question, I would say. यहाँ पे what matters is your knowledge, your expertise, your eagerness to learn, or your diverse nature. कि हमको ये भी सीखना है, ये भी सीखना है. And once you are up with that knowledge, you are free to choose the company. You are free to choose the company. It will not be. देखो, there is this dialogue in three days. Success के पीछे मत भागो, कामयाब बनो. Success तुम्हारे पीछे जाएगा. So वही केस है. If you work upon your own skills, if you work upon your own developing your knowledge, be it hardware, be it software, अगर उसको तुम लोग अपने एंड से अच्छे से डेवलप करोगे तो कंपनीज की खुद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आती है. यू हैव कॉन्टैक्ट्स इन कॉलेज. ऐसे आई डोंट मीन कि ऐसे कॉन्टैक्ट्स, बट being mutual contacts, like talking to faculty, telling them what you are interested in, telling them कि तुमने आज ये experiment किया, उनको ऐसे outcomes है. What happens is faculty को भी मालूम पड़ता है कि yes, he's seeking an opportunity. और अगर they see the spark in you, they definitely will recommend your name to the recruiters. Yes. तो अभी मैं second year में अभी just आया हूँ. There is a company जो मैं नाम आपको नहीं दे सकता for obvious reasons. Me along with 2-3 friends already have an internship opportunity by the end of first year at BIT. So it was not because as a necessary need की third year fourth year में लगे. अगर आपका skill set या knowledge इतना develop किया है, you are capable to definitely get the opportunity. There's this internship wherein we are working with a company to develop drone system into their environment. So yes, internship is not dependent on say year में हो तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं होता है कि fourth year में आने के बाद आपको guaranteed placement मिलेगा. It is not always. जैसे मैंने कहा तुम्हारा knowledge होगा तो तुमको मिलेगा. क्यों run around BIT में आने के बाद बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि ना मुझे पढ़ो, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं. वो लोगों का आगे कुछ नहीं. Honestly speaking, who stay to the ground, उनके पास अपॉर्चुनिटी कुछ चल के आती है से कहने से ज्यादा you earn that opportunity. तो बड़ा हमने एक मतलब so ऐसा easy फंडा है, it goes hand in hand, the knowledge, skill set and the opportunity. Yes. So as you know, if आपके पास स्किल सेट है, देन आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज या फिर प्लेसमेंट गेन करने के लिए इतना कुछ हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू हैव टू डू हार्ड वर्क इन द राइट वे टू फोकस ऑन योर स्किल्स. आपको स्किल्स पर ज्यादा फोकस करना है, देन आपको थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जाने तक का भी वेट नहीं करना. सेल्फ डेवलपमेंट एक्चुअली, सो सेल्फ डेवलपमेंट मैटर करता है. सो यू हैव टू इंक्रीज योर कनेक्शंस, लाइक आपको टीचर्स से कनेक्शन बनाना है, सीनियर से कनेक्शन बनाना है एंड ऑल. So right, so you need to learn yourself. कॉलेज पे डिपेंड रह के नहीं होता है, लाइक आप अपने कॉलेज को ब्लेम करके नहीं होगा कि मेरा कॉलेज ऐसा है वैसा है. देन ये जो लोग हैं कॉलेज को ब्लेम करते रह जाते हैं, इन्हीं लोगों को लास्ट में प्लेसमेंट मिल लगती है एंड देन फिर वो बोलते हैं कि ये कॉलेज अच्छा नहीं, वो कॉलेज नहीं, या फिर इंजीनियरिंग में ज्यादा स्कोप नहीं है. राइट, दिस इज वेरी रॉन्ग मिसकंसेप्शन. सो ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि इंजीनियरिंग में जॉब्स नहीं है या फिर ये पर्टिकुलर कॉलेज में जॉब्स नहीं है. तो ऐसा नहीं है.
अगर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो देन ऐसा नहीं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल गया एंड यू आर फ्री। सो नहीं, आपको इन 4 सालों में आपकी स्किल्स पे फोकस करना है, आपके अचीवमेंट पे फोकस करना है, मेक अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल, आपके कनेक्शंस बनाओ, आपके और प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड प्लेसमेंट्स एंड ऑल। So coming on to the next point, as you know, VIT का intake बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। So we can't say बढ़ गया है, like VIT and VIIT को merge combine कर दिया है, so दोनों का total intake 750 हो गया है। So just it is the result of combining the two colleges. But लोगों का अभी ये doubt आ रहा है कि does really intake issue is a big thing, like does intake really matter in placement? Like so उस पर आपका क्या कहना है? आपको भी ये क्वेश्चन आया होगा आपके वक्त कि आप कॉलेज चूज करते हो, देन यू हैव ऑप्शन लाइक अदर कॉलेजेस के ईएमटीसी कॉलेज इन ईएमटीसी का, सो व्हाई यू चूज वीआईटी ओवर अदर कॉलेजेस? पहले तो इंटेक की बात करूं तो दैट इज आई वुड से अ बिट सैड पार्ट कि कैसा था ना, जब इंटेक बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली यू नो कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ जाता है तो पहले जिस सीट के लिए 10 लोग कम्पीट कर रहे थे, अभी वही 50 लोग करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ दैट सीट इंक्रीज एंड 50 लोग में से भी 20 लोग ही सीरियस होंगे, बट स्टिल यू हैव द कंपटीशन टू टाइम्स ट्वाइस। तो इंटेक बढ़ने से ऑफ कोर्स द कॉलेज इज वर्किंग टू गेट इन मोर इंडस्ट्रीज, बट कॉलेज तुम्हारे लिए वो सब कर ही देगा। Apart from that, the industry should think you to be capable to be hired in those positions. तो हमने भी खुद इतना कैपेबल होना चाहिए टू गेट एन इंडस्ट्री और गेट एन गुड क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट। सो isn't it right कि like बस कॉलेज को ही ब्लेम करो एंड ये कॉलेज चूज मत करो? लाइक इफ यू आर फोकसिंग ऑन ओनली वन पॉइंट, लाइक आप इंटेक को ही पकड़ के चलोगे तो आप ये बहुत सारी चीजें मिस करोगे जिससे आपका पूरा एकेडमिक लाइक अच्छे से प्लान बेस या फिर आपका बेसिस बिल्ड होता है। लाइक बहुत सारी चीजें हैं जैसे वीआईटी में एक्सपोजर हो गया, क्लब कल्चर, इंडस्ट्रियल लेवल सब्जेक्ट, ये सारे पॉइंट्स को इग्नोर करके आप बस इंटेक इशू को देख के वीआईटी में प्लेसमेंट्स लेने का नहीं सोच रहे हो या फिर वीआईटी में एडमिशन लेने का नहीं सोच रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। सो लाइक you know, like I know few people from COET, from IITs, जो भी final year कर रहे हैं, but they don't have any job there anymore. But I also know people from VIT or COET or PICT जो first year में है। अभी मेरा एक friend है, he's really good at web development. Okay. A company hired him already. He's I guess from IT branch से है, and he's genuinely good at what he does. तो उसने फोकस किया कि उसको अच्छा करना है इन वेब डेवलपमेंट। He worked on his skills. Okay. So he got chosen. So right, अभी जो करंटली जॉब मार्केट है उसमें आईआईटी या फिर आईआईटी टॉप कॉलेजेस के भी बच्चे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती है। सो लाइक बी बेस्ट एट वन डोमेन, आपका एक डोमेन चूज करो, उस डोमेन में बेस्ट बनो, उसमें स्किल्स डेवलप करो एंड आपको फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर में ही इंटर्नशिप मिल जाएगी या फिर मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। Yeah, but that first or second year is really, I would say, not always the case. Because first, second year में still many of the students are exploring as to what to get. Because अभी just JEE के धोखे से बाहर आए हो गए, they get into good college despite all of that, despite all the मेहनत they have done. यहाँ पे आने के बाद भी नया कल्चर होता है, बहुत सारे लोग ऐसे थे काउंस करते हैं, उनको भी थोड़ा फिट होने के लिए टाइम लगता है, तो एक हाफ ईयर तो ऐसे ही चले जाता है। बट इट इज नेसेसरी कि यू ऑलवेज नो कि तुम्हें क्या करना है। इफ यू हैव योर विजन क्लियर देन देयर इज नथिंग सॉल्व। So moving on to the next question. Moving on to the next question, like VIT का वो कैंपस लाइक कोडवा कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? लाइक हमें पता है VIT विवेवाड़ी का कैंपस थोड़ा डेवलप कैंपस है। सो इज इट द सेम केस इन VIT कोडवा कैंपस और वहाँ पे बिल्डिंग्स के रूप में अलग देखने मिलते हैं एंड कैंपस एरिया कितने हैं? So this is a really good question. VIT विवेवाड़ी is definitely बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ मैं एक्चुअली VIT कोडवा में
most of the time spent with that. So I'll talk about that. Campus is bigger than February campus. We want to see size. Yes. Apart from that, the college has replaced all the old computers with new computers. Right. The newest generation CPUs to go best infrastructure. The college has latest Wi-Fi 6. You have to put in your college ID to log in curricularly. You are almost able to harness the Wi-Fi capabilities throughout the campus. वहाँ पे कैंटीन अच्छे हैं. They have developed the canteen services. Really good catering services are there. Apart from there, college का जो seating arrangement है, not only inside the classes, out of the classes, जो students usually बाहर बैठना पसंद करते हैं, ठंडी हवा में, after the lectures, during the break time, तो वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने किया. There is ample amount of lighting which has been upgraded. Then there are charging sockets जो उन्होंने हर एक seating, like even outside of the college, ground के पास they have charging facilities. तो लोग बाहर बैठ के भी उनका काम कर सकते हैं. So कैंपस में क्लीनलीनेस, आज ही मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था. So like दिन में 4 से 5 बार कैंपस क्लीन होते रहता है. Washrooms are being well maintained. The internal buildings are also being upgraded. We have new devices. Like ENTC में especially oscilloscopes रहते हैं. There are a lot of machines, tools, electronic components which are required. Which is very required to be in. Which is a basic requirement of ENTC. और वो हमें अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि एक ऑसिलोस्कोप अराउंड द कॉलेज ने जो भी परचेस किया दैट इज अराउंड 35,000 और वैसे एक लैब में 8 से 10 ऑसिलोस्कोप्स हैं. I'm talking only about the oscilloscopes. So from that there is a power supply. There are multiple other things. So वो सब ही it is new tech I would say. कि आपको कुछ पुराने जनरेशन वाले टेक का काम नहीं करना पड़ेगा. So इस मामले में I have to give a plus point to EIT. So like colleges spend a huge amount on infrastructure. So like infrastructure की तो हम बात करें तो infrastructure हमें दोनों ही कैंपस का टॉप नॉच देखने मिलेगा. Talk about the infrastructure. So EIT कोरोना का overall crowd कैसा है? Like उनमें बच्चे कैसे हैं, competitions कैसी है, या तो peer कैसे है? So I tell it as a collective thing, not only about EIT, but most of the colleges. Yes, मेरे कॉलेज में तो जो मैं नोटिस कर रहा हूँ आसपास, most of the people in both the campuses, not only that, but both the campuses have come with no vision. Like they don't know कि वो engineering क्यों कर रहे हैं at the first place. और ये जो बात है सबसे disheartening है. या फिर I can say expected नहीं था. We expect a lot of competitive behavior around the people, and it should be a good competition. Competition जो लोगों के बीच में है वो कैसा है? मैं आगे बढ़ूंगा दूसरे को नहीं बढ़ेगा. ये competition, this is not healthy competition. Healthy competition is when you let the other is go along with you. Like if you want to impact to create करो. That is considered as a healthy competition. If somewhere वो lacking है, तुम्हें अगर कोई suppose your 2 to 3 people, your friends, are like asked to get thrown from a ship into a sea, then it's only and only up to you कि तुम्हें की swim करना है, तुम्हें हाथ पैर मारने हैं, तुम्हें shoulder Like to make you have to make your own way. Supportive friends या supportive peeps in your own domain थोड़े कम है, इंटेक्स ज्यादा है, तो थोड़ा सा से परसेंटाइल कम परसेंटाइल में भी अच्छे ब्रांचेस मिल रहे हैं, मिलने के चांसेस क्या है? रिसेंटली थोड़ा परसेंटाइल पे टॉपिक किया है. हाँ, बिकॉज़ वी हैव नंबर ऑफ सीट्स, तो ये पॉइंट है. crowd. Slightly disappointing crowd है, I would say. Not saying कि I am better or something, but जो expected होता है कॉलेज में आने के बाद कि you get supported, तुम अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो लोग उसे support करेंगे, लोग उसे promote करेंगे, वो कहीं नहीं है. There is a lot of Gen Z behavior. We all belong to that generation only, but extreme. हाँ. तो जो ambitious लोग हैं, make sure you make friends with them. तुम खुद उस तरीके का अप्रोच रख के आओ
तभी जाके जो बाकी करिकुलर्स है उनमें और इट विल बी अ विनिंग सिचुएशन फॉर बोथ द साइड। तो एज यू नो बीआईडी इंटर्न पहले ही पढ़ा हुआ है एंड उसमें आपको बहुत तरह के लोग देखने मिलेंगे एंड इट्स योर कॉल कि लाइक आपको कौन से लोगों के साथ रहना है। यू हैव टू चूज योर ओन पीपल। लाइक आपको कैसे लोग चाहिए, आपके लाइक माइंडेड पीपल चाहिए या फिर लाइक आपको आपके जो करिकुलम है या फिर आपके एकेडमिक्स लाइफ हो गया या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो गया उसमें सपोर्टिव लोग चाहिए। सो यू हैव टू चूज योरसेल्फ। सो ओवरऑल देखा जाए तो क्राउड में भी थोड़ा हमें डिफिकल्ट देखने मिलता है बट अगर हमारे कैपेबिलिटी है कि हम उसको चूज कर सकते हैं क्राउड सो दैट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स जिधर बुराई है, जिधर जहां अच्छाई है वहां बुराई है एंड वाइस वर्सा। सो नेक्स्ट थिंग हम बात कर रहे थे कि बीआईडी में लाइक सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स होते रहते थे एंड देन हाउ कैन यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। लाइक आप कितना परसेंट नॉलेज उसमें गेन करते हो या इज इट रियली यूजफुल। यस, हमारा कॉलेज में ऑडिटोरियम है जहाँ पे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। और आई हैव अटेंडेड फ्यू सेमिनार्स एक्चुअली। जो हमारे बी कॉलेज का बी ईडीसी क्लब है, वी हैव विश्व कॉन्फ्लिक्ट क्लब है। तो मुझे तो अभी इतने ही याद आ रहे हैं। तो क्या होता है ना, these clubs they have speakers जिन्हें वो बाहर से बुलाते हैं to give some motivating speeches to students how their approach should be throughout the whole semester। तो इस बारे में गाइडेंस और जो बाहर से लोग आते हैं वो तो डेफिनेटली मैंने एक्सपीरियंस किया है कॉलेज में। इनफैक्ट हमारे कॉलेज के ही फैकल्टी हमसे क्लासेस में डिस्कस करते रहते हैं इस बारे में। Apart from that, जो seminars होते हैं, they are helpful. There are many seminars which are organized by specific industries. तो उनके spokesperson आके seminars देने लगते हैं कि आपको कोई में इंटरेस्ट है तो आपको इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, तो उस डोमेन में इंटरेस्ट है तो आपको उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये डेफिनेटली है। सो रिगार्डलेस ऑफ सॉरी बस सो एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में ही नहीं बट आपके एकेडमिक्स में भी ऐसे सेमिनार्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आपको आपका पाथ नहीं पता कि क्या आपको चूज करना चाहिए। सो ऐसे भी इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोग्राम्स और फिर सेमिनार्स होते रहते हैं बीआईडी में जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में आपकी लाइफ में। एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट से वो सेमिनार होते हैं सो राइट ऑफ कोर्स वो आपको हेल्प भी करेंगे आपकी एकेडमिक लाइफ होगी या फिर आपकी कॉर्पोरेट लाइफ होगी। हमारे कॉलेज में जो बीईडीसी क्लब है उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं ऑन कैंपस। यस, अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ था और देन सर उसके बाद लाइक इट वाज अ होल आई थिंक 2 to 3 days ग्रैंड सेलिब्रेशन टाइप। इट इज द व्हाट वी से फ्लैगशिप इवेंट ये कहते हैं। सो हमारे कॉलेज में जो बीईडीसी क्लब है उनका अभी आई थिंक फ्लैगशिप इवेंट भी हुआ था which was very much focused towards entrepreneurship। तो वहाँ पे जो लोगों को उन्होंने बुलाया था इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, कॉलेज से ही कुछ मेजर स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कॉलेज के बाद में स्टार्टअप अपना कुछ शुरू किया है, उन्हें बुलाया था, उनसे गाइडेंस मिला था। And one point, they are not from IITs and NITs. They are some of them are from VIT itself. Yes, they are the alumni from VIT and like Maharashtra colleges के ही वो लोग थे। Yes. तो डेफिनेटली उस मामले में भी आपका अगर कोई स्टार्टअप है तो वहाँ पे आपको एक्सपोजर बहुत बढ़िया तरीके से मिलता है कि डेफिनेटली दैट इज। So we have covered all the points in today's interview. So now our conclusion point is आप अभी जो कॉलेज ज्वाइन करना चाहेंगे जो लोग या फिर अगले साल कॉलेज ज्वाइन करना है या फिर बीआईटी जिनको ज्वाइन करना है जिनका ड्रीम है महाराष्ट्र के टॉप 5 कॉलेज में बीआईटी आता है सो लाइक उनको बीआईटी ज्वाइन करना है। सो व्हाट एडवाइसेस यू वांट टू गिव टू देम, लाइक क्या सजेशंस आप उनको देना चाहेंगे बिफोर ज्वाइनिंग बीआईटी? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सजेशन जो मुझे है प्लेसमेंट ओरिएंटेशन है, प्लेसमेंट माइंडेडनेस से कभी भी कोई कॉलेज चूज नहीं करना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल, अगर आप प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो तो ये भी देखिए खुद कितने केपेबल हो उसके
third of all, always come with an open mind. Come with an vision कि हमें आज कुछ नया सीखने मिलेगा. It shouldn't be a burden कि यार अगली क्लास में जाना है. ऐसा नहीं होना चाहिए. You should always be positive towards whatever you have decided. Yes, because see, college ये मेरा personal opinion है. College is like a plate. इसके अंदर तुम्हें सब opportunity अगर खाना सर्व कर दिया है, अभी वो तुम्हारे ऊपर है कि उस खाने को तुम खाना सोलो भी करना है, चबाना भी तुम्हें खुद को ही. तो opportunities तो मिलेंगी, बहुत सारे मिलेंगे opportunities. वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कितने अच्छे से, कितने जल्दी, कितने efficiently कंज्यूम करते हो. Of course, extra curriculars बहुत सारे हैं. There is no limit to that. हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर करके थक चुके हैं अभी. इतना हमें फर्स्ट ईयर में हमारे सीनियर्स ने क्लब्स में जो प्रमोट किए थे, फ्रेशर्स है, तो परफॉर्मेंसेस होते हैं, म्यूजिक परफॉर्मेंस, वो कल्चर तो अलग ही नेक्स्ट लेवल पे चलता है. बट फ्रॉम दैट मेक श्योर कि आप जो पर्पस से यहाँ पे आ रहे हो, आप ऐसा खर्च करके आ रहे हो, वो भी कहीं सक्सेसफुली रिटर्न्स तुम्हें देना चाहिए. हाँ, यस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली जो आपको कंसीडर करना चाहिए. या कोई भी कॉलेज में कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं. गरीब कॉलेज में कुछ अप्स होते हैं, कॉलेज में कुछ डाउन होते हैं. नन ऑफ द कॉलेज इज परफेक्ट, नो स्टूडेंट इज परफेक्ट. इट्स कंप्लीटली कि उस मोमेंट में तुम्हारे दिमाग में क्या चाहिए, तुम्हें उसे कैसे टैकल करना है. यू आर सेंसिबल, मैच्योर एनफ, वो अच्छे से टैकल कर दोगे. अगर नहीं है तो यू टेक सपोर्ट फ्रॉम योर फैकल्टी, यू टेक सपोर्ट फ्रॉम योर सीनियर्स. यू हैव few seniors जो अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं, they are really free minded. और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम जाते भी नहीं, से बात करते हैं, वो बता देते हैं कि ये कर हो जाए, कोई ये बात है. So this is all for today guys. I hope कि ये वीडियो में आपके जितने भी पॉइंट्स हैं जो आपको डाउट्स आते थे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, ना कि DIT हो, जो भी अदर कॉलेजेस है, so I hope कि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए हैं. And I would like to thank Aman to give your time to us. Hopefully आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. So like comment down, and if you want any suggestions from Aman, then you can ask in the comment section. We will definitely answer you. Definitely. अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वी आल्सो हैव अ Q&A सेशन इसके के बाद. If you want, then we can. This is my overall point of view towards the college I'm studying in. So thank you for being a Zaria, so that I could give this knowledge to new folks who will be joining. And it was really fun interacting with you, interacting with you all. So जो भी choice हो अच्छे से लो. On that note, we'll stop. Thank you. Thank you so much.